गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। अमेरिका का वर्चस्व सॉफ्ट इश्यूज को लेके यानी कि कल्चर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर भी बहुत ज़्यादा है। It would however be a mistake to see US hegemony in purely military and economic terms without considering the ideological or the cultural dimension of US hegemony. जब हम अमेरिकी वर्चस्व की बात करते हैं तो केवल इतना कंसिडर करना कि अमेरिका मिलिट्रली बहुत आगे है या इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, केवल इतना ही अगर कंसिडर करके चलते हैं तो यूएस हेजेमनी कंप्लीट नहीं हो पाती, यानी यूएस हेजेमनी इससे भी कहीं आगे है। अमेरिका का वर्चस्व हमें सॉफ्ट इश्यूज में भी देखने को मिलता है। The third sense of hegemony is about the capacity to manufacture consent. Here hegemony implies class ascendancy in the social, political and particularly ideological sphere. Hegemony arises when the dominant classes of the country can win the consent of dominated classes by persuading the dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascending of the dominant class. यहाँ पर हेजेमनी सॉफ्ट इश्यूज में हम ये देखते हैं कि जिस नज़रिए से, जिस विचारधारा से अमेरिका और बाकी दुनिया की कंट्रीज जिन्हें हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, अगर बाकी जो शक्तिशाली देश मानते हैं, अगर उन्हीं विचारधारा को बाकी कंट्री फॉलो करने लगते हैं या वो दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं उसी नज़र से अगर दुनिया की बाकी कंट्री भी वही व्यू रखने लग जाते हैं तो हम यहाँ पे मानते हैं कि प्योरली हम उनके हेजेमनी में जी रहे हैं। Adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser power. The behavior of the weaker countries is influenced in the way that favor the interests of the most powerful country. In particular, its desire to remain preeminent. Consent, in other words, goes hand in hand with and is often more effective than coercion. तो यूएस हेजेमनी हम देखते हैं कि अगर अमेरिका की विचारधारा उसका दुनिया के देखने का नजरिया, जिस थिंकिंग अगर वो दुनिया पे हावी होती जा रही है तो हम मानते हैं कि सॉफ्ट इश्यूज को लेके भी अमेरिका का डोमिनेंस बरकरार है। The predominance of the US in the world today is based not only on its military power and economic prowess, but also on its cultural presence. Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of good life and personal success, most of the dreams of individuals and societies across the globe are churned out by practices prevailing in 20th century America. America is the most seductive and in the sense the most powerful culture on earth. This attributes is called soft power, the ability to pursue rather than force. Over time we get so used to hegemony that we hardly notice it any more than we notice the rivers, birds and trees around us. You couldn't have forgotten Andrei and his cool pair of blue jeans when his parents were youngsters in the Soviet Union. Blue jeans were the ultimate symbols of liberations for their generation. हमने आंद्रे के केस में पढ़ा था, आंद्रे ब्लू जीन्स पहनना पसंद करता है, ब्लू जीन्स पहन के चर्च जाना पसंद करता है, वहीं उनकी मदर उन्हें ब्लू जीन्स पहनने की इजाजत नहीं देती है। Young men and women often spend over a year's salary to buy blue jeans from foreign tourists on the black market. Somehow
For an entire Soviet generation, blue jeans came to represent aspiration of the good life that were not available in their own country. तो हमने देखा कि सोवियत यूनियन के वो बच्चे अपनी साल भर की कमाई, अपनी साल भर की जो कमाई है, अपनी साल भर की कमाई ब्लू जीन्स खरीदने में बिता देते थे। ब्लू जीन्स खरीदने में अपनी साल भर की कमाई खर्च कर देते थे। वहीं से पता चल जाता है कि साल भर की कमाई खर्च करने ब्लू जीन्स खरीदने में खर्च कर देते थे, जिससे हमें पता चलता है कि सोवियत यूनियन में भी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पहनावों को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर द यूएस फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर victories against the Soviet Union in the realms of the hard power. It was in the area of structural power and soft power that US scored notable victories. Although the Soviets centrally planned economy provided an alternate model of internal economic organization, the world economy throughout the Cold War years remained a world capitalist economy. और हमने देखते हैं कोल्ड वार पीरियड में अमेरिकन और सोवियत इकोनॉमी जो है, अमेरिकन और सोवियत इकोनॉमी के बीच में काफ़ी कंपटीशन थी। अमेरिका कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा था, वही सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट सिस्टम और सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। और कोल्ड वार ख़त्म होते वक्त सोशलिज्म डिसअपियर होता चला गया और कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी होता चला गया। बट इट वॉज एन एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर दैट द यूएस वॉज अल्टीमेटली ट्रिumphant as the example of the blue jeans age. Blue jeans, the Soviet Union clearly showed US was able to engineer a generational divides in Soviet society on the basis of the cultural products. तो यहाँ पर देखिए ये कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं। पेप्सी कंपनी है और जो कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन्स हैं, तो ये पूरी दुनिया में ही हावी होते जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अमेरिका का जो पावर है वो मिलिट्री पावर में अमेरिका बहुत ही आगे, स्ट्रक्चरल पावर में, बिजनेस में, दुनिया भर में अमेरिकन ट्रेड को लेके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। दुनिया का जो आपको वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड ट्रेड को अमेरिका डोमिनेट करता है। और समुद्री मार्गों से जो सी रूट से, सी लेन से जो व्यापार होता है, वहाँ पे अमेरिका का डोमिनेंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम सॉफ्ट इश्यूज़ की बात करें तो अमेरिका का पहनावा, वहाँ की तरह का खान पान, रहन सहन भी पूरी दुनिया में डोमिनेट होता चला गया। और अमेरिका कल्चर सोवियत यूनियन में भी बहुत हावी था। सोवियत यूनियन में बच्चे जो है जीन्स पहनने को आज़ादी की निशानी मानते थे, ब्लू जीन्स को अपनी आज़ादी की निशानी मानते थे। और धीरे धीरे हमने देखा कि सोवियत यूनियन में जैसे ही सोशलिस्ट सिस्टम एबोलिश होता चला गया, ख़त्म होता चला गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी होता चला गया। तो अमेरिका की विचारधारा थी कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो दुनिया में हावी है। आज दुनिया की बहुत सारी कंट्री कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही फॉलो करती हैं। तो बेटा आज हमने ये पढ़ा अमेरिका के बारे में, और हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।